So hello everyone, welcome back to our new vlog. Those who don't know me, myself Anamika Rawat. Currently I'm a second year MBBS student and this vlog is going to about a little chit chat where I'll be just blabbering and you will be listening. So have patience. In this vlog I am going to share about my first year MBBS experience with you all, जो आप मेरी आंखों देखी मेरे दिल का और मेरे दिमाग का हाल मेरी जुबान से सुन पाओगे. It was just like full of emotions, full of up and down, basically down ही रहे हैं, and it's been a roller coaster for me. Whether you are a aspiring medical student or a MBBS student or maybe parents, because many of them watch, I know, so it will be like मेरी कहानी मेरी जुबानी. I don't know you will be able to relate it or not. इसको मेरी तरीके से लेना, and if you want to have any learning from it then definitely go for it, otherwise ignore it. Everyone's story different mentality, different personality, different perspective of to see the things. तो इट्स जस्ट मेरी कहानी मेरी जुबानी. तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं लाइक एक्सपेक्टेशन से कि जब हम कॉलेज आए थे तो क्या ख्याल था दिमाग में कि कैसा कॉलेज होगा. मेरे लिए कॉलेज से ज़्यादा मैटर करता था हॉस्टल के ख्याल एकदम अलग थे. इट वॉज लाइक बड़ी सी बिल्डिंग होगी, बड़ा सा ग्राउंड होगा जहाँ और हम लाइक दोपहर में धूप सेक पाएंगे और सब बैठ के बात करेंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे. लाइक पूरा टोटली फिल्मी वाला माहौल होगा और एक बड़ी सी कैंटीन होगी जहाँ कहीं थोड़ा सा रोमांस चल रहा होगा, कोई किसी को मना रहा होगा, कुछ खा पी रहे होंगे, मतलब जैसे पूरा टीवी में दिखाते हैं, सीरीज़ में दिखाते हैं. इट वॉज फुल ऑफ लाइफ्स. बट व्हेन आई केम हियर छोटू सा कैंपस आई गॉट, जो कि इट्स ओके, मतलब इतना लेना देना नहीं है बिकॉज आई स्टे इन माई रूम ओनली, तो मैटर नहीं करता मतलब. एंड बिफोर ज्वाइनिंग दिस कोर्स ऑल्सो आई हैड नो आइडिया डेट हाउ MBBS लुक्स लाइक, what are the subjects it includes, how many subjects it includes. I was having no idea about it also. I was only knowing that it contains 5.5 years. लाइक इसको करने में 5.5 साल लगते हैं और इंटर्नशिप में पैसे आपको मिलते हैं. ओनली दिस मच आई वॉज अवेयर ऑफ MBBS. और फिर हाँ ऑफकोर्स नाम के आगे तुम्हारे डॉक्टर लग जाता है जिसके लिए तुम यहाँ आए हो बताती. बट इन रियलिटी इट रियली हिट मी हार्ड. दिल के इतने टुकड़े कर दिए ना कि दिखा नहीं सकती मैं. लाइक इट वॉज फुल ऑफ स्टडीज़, फुल ऑफ लर्निंग्स, फुल ऑफ ट्रॉमाज. So MBBS is an intense journey which not only demands your time but it also demands your energy, like how much you can put into it, your time, your patience. and यहाँ पर patience तो इतना रखना होता है कि अगर ये नहीं है तो तुम survive नहीं कर पाओगे. So if you are a first year MBBS student तो please have as much of patience you can have. किसी और का भी borrow करना है तो please कर लो, but have it. And it was not only about studying कि हाँ तुमको सिर्फ पढ़ते रहना, but all about understanding the things revolving around you. And so it was not so glamorous as I have imagined, but it's okay. मतलब it was equally, not less, not more. If I'm having it, then I'm happy and I'm so grateful for what I'm having right now. So now let's talk about the academics, that what it includes. Basically, it includes 3 subjects. First is anatomy. It is just like Rattamar, but also about understanding. And the second one is physiology and biochemistry. First year is nothing without it. ये 3 सब्जेक्ट आपको पूरे साल पढ़ने होते हैं. हमारा फर्स्ट ईयर कैसा था एकेडमिक वाइज, लाइक क्या था, मैंने क्या किया था, एनाटमी, फिजियो एंड बीकेम. मैंने ना 2 सब्जेक्ट की बुक ले ली थी, घर से ही लेकर आ गई थी, लाइक फिजियो एंड बीकेम. एंड एनाटमी की मैंने बुक्स नहीं खरीदी थी, जिससे ज़्यादा ज़रूरी है एनाटमी की बुक परचेज करना, विच आई हैवंट परचेज इट, एंड दैट आई हैव बोरोड वन ऑफ माई फेवरेट सीनियर, तो उनसे मैंने ली थी. एंड फॉर फिजियोलॉजी आई हैव यूज्ड AK Jain, which is personally my favorite one. And for BChem I have never used any of the book. Like for the first chapter I was trying to understand from the book, but it was like नहीं पढ़ा जाएगा, तो I have only used that Jambulkar, which was suggested of course by our beloved seniors. So anatomy is like Johari MBBS from YouTube channel. I have learned all his lectures and I have never purchased any of the app in first year, क्योंकि हमारा पूरा साल like 5 महीने तो ऐसे ही चले गए थे. हमें समझ ही नहीं आ रहा था हमें किससे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है. और हमारे टाइम पे ये भी था कि कुछ लोगों ने ऐसा दिमाग में बैठा रखा था कि डोंट गो टू योर सीनियर्स.
तो इस वजह से हम उनके पास जाते नहीं थे, जस्ट बिकॉज ऑफ डर की वजह से या कुछ और। मतलब वी हैव नेवर आस्क्ड कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमें क्या नोट्स लेने चाहिए। एंड व्हेन इट वाज लाइक बिफोर प्री प्रॉफ सीजन इन मे, या मोस्ट प्रोबेबली इन मे एंड जून, एंड देन आई स्टार्टेड विजिटिंग माई सीनियर्स। जाके पता चला कि भाई आई कैन कम, तो इफ़ यू आर अ जूनियर देन प्लीज़ गो टू देम, दे आर देयर टू हेल्प यू। सबसे बड़ी मिस्टेक तो मेरी यहाँ पर यही थी कि हमने शुरुआत में किसी से पूछा नहीं। मेरे को बेसिकली जो मिलता था मैं उससे पढ़ लेती थी। एकेडमिक वाइज शुरुआत के हमारे 3 महीने, लाइक हमारा सितंबर में सेशन शुरू हुआ था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जैन, जब हमारे फैब में फर्स्ट टर्मिनल्स थे, एट दैट टाइम हम थोड़ा सीरियस हुए थे कि भाई अब पढ़ लेते हैं अदरवाइज़ फेल हो जाएंगे। बिफोर 1 वीक थोड़ा ढंग से पढ़ना सीरियसली शुरू कर दिया था। एंड भी लाइक फरवरी में एग्ज़ाम्स हो गए, फिर मार्च और अप्रैल आया, वहाँ पे फिर थोड़ी सी छूट मिल गई कि अब एग्ज़ाम हो गए, अब सीधा मई में होंगे हमारे सेकंड टर्मिनल्स। तो एट दैट टाइम विल बी मोर सीरियस नाउ एंड नाउ लेट्स चिल। तो बेसिकली हम क्लास करने तो जाते थे पर हम इतना पढ़ते नहीं थे। रूम पे आके तो इट वॉज लाइक हमारा जो शेड्यूल रहता था वो रहता था 9 to 5, सुबह 9 बजे जाना, 12 बजे आना, फिर 1 बजे जाना और 5 बजे आना, बीच में 1 घंटे का लंच मिलता था। लाइक हमारे यहाँ मंडे था तो इट वॉज फुल ऑफ एनाटमी ओनली टू गेट बोर कि यार भाई पूरा दिन। द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ एनाटमी वॉज लाइक for the first time holding that scalpel and exploring that body, learning about the nerves, veins, arteries. I know it was so tough to learn, to memorize it, but it was like very holy experience कि तुम finally for the purpose you are here and the thing you are doing dissecting. When I saw that cadaver I was like, and the room was full of formalin, पूरा महक रहा था and मेरे को भी लग रहा है कि अब वॉमिट हो जाएगी, तो मेरे से ना वो महक बर्दाश्त नहीं हो रही थी। And then with my friends I entered the room and I just saw that cadaver देख रहे हो and now you are about to do practical on that। तो मतलब थोड़ा नॉस्टैल्जिक मोमेंट भी हो गया। बट हमारे केस में ना लाइक कोई इंसान बेहोश नहीं हुआ था क्योंकि सब इतना पक्के हो जाते हैं, सारा चीज़ों उनको पता होता है। जितना ज़्यादा मतलब एक्साइटिंग लग रहा था उस बॉडी को एक्सप्लोर करना, सारी चीज़ों को देखना, उतना ही मुश्किल था टू मेमोराइज दैट। सारे नहीं याद रह पाती, आज भी डिफ्रेंशिएट करना हम भूल। पहली बार मैंने स्किन निकाली थी हमने एंड दैट मैंडिबल पे हमने थोड़ा सा स्कैल्पेल चलाया था एंड ऑल्सो आई डाइसेक्टेड दैट पेक्टोरालिस मेजर and so good and so soothing experience in anatomy। And if you are a first year MBBS student and you are going for anatomy dissection hall, then please go and explore that because that will never come again in your life। For the 4 years so it will never come, like this is for the first time। That was all about the anatomy। और what you can do for anatomy is like प्लीज़ डेली पढ़ो। हमारे टाइम पे था कि हम पूरा दिन anatomy ही पढ़ते थे क्योंकि anatomy ऐसा सब्जेक्ट है कि तुम आज पढ़ोगे एक चीज़ तो तुम कल भूल जाओगे, इसका तुम्हें नाम नहीं याद होगा, कितने तुम्हारे यहाँ पे फ्लेक्सर्स हैं, कितने तुम्हारे एक्सटेंसर्स हैं। इसलिए लाइक रिवीजन करते रहना पड़ता है। फिजियो और बीकॉम पूरे साल नहीं पढ़ा गया है बट एक्सेप्ट दैट एग्ज़ाम टाइम, क्योंकि पास होना ज़रूरी है सारे सब्जेक्ट्स में। लेट्स टॉक अबाउट द फिजियोलॉजी। Physiology was all about like how our body functions, so that was very easy। whatever you have read in your 11th 12th and during your NEET prep that will come and some कुछ of course add हो जाएगा doing MBBS, तो कुछ चीज़ें और extra add होनी है तो that will get added, otherwise it is all like totally easy। and before 2 or 3 months of your final prof if you are studying then you will easily get good marks in that। and same goes for biochemistry also। that was the relationship वैसा था love hate relationship, मतलब चीज़ें अच्छी भी लगती थी बहुत और कुछ लगता था कि भाई कितना रटना पड़ेगा। जब प्रैक्टिकल्स वर अमेजिंग, कुछ गिने चुने होते हैं दैट ओनली यू हैव टू परफॉर्म फॉर द होल ईयर एंड हर चीज़ का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यू मस्ट नो। एंड सेम गोज फॉर physiology also। our physiology was divided into 2 parts like clinical and hematology। क्लिनिकल में बेसिकली हमने बीपी नापना सीखा है फर्स्ट ईयर में, हिमैट में तो हम पूरे साल अपना खून निकालते रहे। ऑल्सो हेयर आई वांट टू शेयर वन ऑफ द मोस्ट मतलब प्यारा सा मोमेंट प्रैक्टिकल मिला था करने के लिए। हीमोग्लोबिन हमें मेज़र करना था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपना ब्लड निकाला, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला पिपेट के थ्रू, और फिर मैंने वो जो उन्होंने हीमाटोमीटर का, अभी मेरे को उसका नाम नहीं याद है, किससे अपना मेजर कर रहे थे हम, तो मैंने उसमें डाल दिया। अब उसमें यार उसका कलर ही नहीं आ रहा, मैं वेट करती रह गई कि भाई कलर आ पता नहीं कब कलर आएगा, और ये एग्ज़ाम का टाइम था। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे पास डेटॉल था, मैं खुरापाती दिमाग मेरा काम कर गया, मैंने निकाला डेटॉल,
और मैंने उस टेस्ट ट्यूब में डेटॉल डाल दी और वो येलो कलर मैच हो गया. मतलब इट वॉज so horrible. So that was about the academic. It's 4 o'clock मॉर्निंग के. मैं इतना ज़्यादा बोलती हूँ और अभी भी कितना कुछ बाकी है. लाइक कॉलेज लाइफ कैसी रही उसके बाद में. मौका मिलता था थोड़ा घूम आते थे. और यहाँ सिद्धार्थनगर में घूमने वाली ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ आप आउटिंग के लिए जा पाओ. कॉलेज लाइफ में लाइक नए नए दोस्त मिले थे फर्स्ट डे. वो दोस्त मेरे साथ आज भी साथ हैं. कुछ साथ ऑफ कोर्स छूट जाती, इनिशियल साथ रहते हैं, वो आपके हमेशा साथ रहे ऐसा नहीं होता है. वक्त के साथ लोगों की प्रायोरिटीज़ बदलती हैं. लोग पहले दिन इंसान को आप कितना ही समझ पाओगे. विद द फ्लो विद द टाइम थिंग्स विल गेट चेंज एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. दोस्तों के साथ रह के थोड़ी आसान हो गई. कॉलेज लाइफ के जो फ्रेंड्स होते हैं दैट रियली मैटर्स अ लॉट. हम एक बात मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी कि प्लीज़ just normalize the things by calling your batchmates as just batchmates. तुम उनको बैचमेट बुला सकते हो. नॉट एवरीवन इज़ अ फ्रेंड. एंड फॉर मी इफ़ लाइक 100 स्टूडेंट का बैच है यहाँ पे एंड आई कांट कॉल एवरीवन एज माई फ्रेंड. हर किसी को तुम दोस्त नहीं बना सकते अपना. और हाँ, हर कोई यहाँ पे सपोला भी नहीं होता है तो हर कोई यहाँ पे दोस्त भी नहीं होता है. तो आपके मुंह पे बहुत आपके मीठे बन रहे हैं दैट डजेंट मीन कि वो आपके लिए अच्छा ही सोचते होंगे. चीज़ मैंने कॉलेज लाइफ में आके सीखी है कि you can't stand everywhere for truth. Now let's talk about the seniors. तो मतलब touch wood, I have got the best seniors in my first year. ऐसा नहीं है कि सारे seniors अच्छे होते हैं. थोड़ा always cherish me for what I was doing. Wherever I am, like मैं किसी भी place पे हूँ, I have always got द बेस्ट पीपल. एक और 2 इंसान मेरी लाइफ में हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइम मैनेजमेंट. मेरा टाइम मैनेजमेंट फर्स्ट ईयर का बहुत बुरा था क्योंकि मैं सुबह क्लास जाती थी, शाम को 5 बजे आती थी, 6 बजे तक नाश्ता होता था और उसके बाद में थोड़ी देर मतलब इधर उधर चिट चैट, मोबाइल चलाना एंड ऑल, फ्रेंड्स से बातें करना, कॉलेज में क्या हुआ वो सारी डिस्कस करना वापस आकर. एंड देन हम एक रूम में ही पड़े रहते थे. हम 4 दोस्त थे और एक ही रूम में एक ही बेड पे ऐसे पड़े रहते थे. नाउ आई रियलाइज़ कि हमारे पास बहुत टाइम था एंड आई मस्ट हैव यूटिलाइज इट इन अ गुड वे. टाइम मैनेजमेंट स्किल सबसे पहले तो यही हो सकती है, सुबह उठो और 1 घंटे पढ़ डालो. वॉट यू कैन डू इज़ लाइक जस्ट राइट डाउन द थिंग्स you are going to do for the day. Just make that to-do list and try to prioritize the things. If you are, that will really help you. Like हर एक step count होता है ना, every steps count in your success, in your marks. तो your 1 lecture daily इतना तुम करोगे definitely मतलब तुम्हारे ऊपर लास्ट में बर्डन नहीं आने वाला है. And this is how you can manage your time. और तुम क्लास जा रहे हो, वहाँ पर बैठ के पढ़ाई तो होती नहीं है तो अपनी फाइल्स लेते जाओ. अगर बनानी है, कोई डायग्राम्स बनाने हैं तो वो वहाँ जाके तुम बना लो. मीन्स इवेंचुअली यू विल लर्न हाउ टू मैनेज द थिंग्स व्हेन यू इंटर इन दिस फील्ड. मेरा एग्ज़ाम टाइम था, लाइक प्रॉफ टाइम था, तो मैं पूरा दिन पढ़ती थी. 11 बजे सो जाती थी, फिर सुबह में वही 3-4 बजे जाग के मैं पढ़ लेती थी क्योंकि तब था कि मुझे प्रॉपर नींद लेनी थी. अगर मैं नींद प्रॉपर नहीं लूँगी मैं पढ़ नहीं पाऊँगी अच्छे से. तो मैं 11 बजे तक सो जाती थी. एनी हाउ मैं 11 तक सो जाती थी और सुबह उठ जाती थी जल्दी और पढ़ती थी. पूरा प्रॉफ टाइम मेरा ऐसे ही गया है. कुछ ही रातें ऐसी हुई हैं जहाँ पर हमने पूरी रात जागी है, अदरवाइज़ पढ़ने के बेसिस पे पूरा रात हमने कभी नहीं जागा है. मतलब मैंने एक्सेप्ट 4 to 5 nights. If you are here in medical college, you are no longer dumb. Don't consider yourself like a dumb. Don't behave like a dumb. Have confidence and explore the things and try to socialize yourself with other people. Try to learn new things, follow your hobbies because यहाँ रह रहे हो. MBBS सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है. अच्छी आदत डेवलप कर लो जो तुम्हें तुम्हारे लाइक करियर वाइज भी तुम्हारे लिए अच्छी हो, तुम्हारी पर्सनालिटी वाइज भी तुम्हें अच्छी हो. इवेंचुअली वो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प कर रही हो बिकॉज बाकी की चीज़ें इतनी टॉक्सिक हो जाती हैं दैट यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इट. तो उन सबको मैनेज करने के लिए यू हैव टू हैव सम हॉबीज़ इन बिल्ड योर इन यू. बट आई कैन हैव लाइक मेमोरीज. हाँ, लव टू डांस एंड I have performed for the first time on 22 Jan. Like that was the first time. स्कूल में फंक्शंस होते थे, एनुअल फंक्शन होते थे, बट एंड दिस वेरी बैड मेमोरी रिलेटेड टू कॉलेज फेस्ट. मैंने मतलब फील किया है कि अगर तुम्हें वो चीज़ नहीं करनी है देन यू आर फोर्स टू डू दैट. तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है. अदरवाइज़ डांस के पर्पज़ से तो लेट नाइट जो DJ नाइट हुई थी वो आई हैव रियली इन्जॉयड वेल. द चैलेंजेस यू फेस लाइक स्ट्रेस और प्रेशर, ये तुम्हें खुद से ही तुम चीज़ें सीखना सीख जाओगे.
बस तुम्हें क्या करना है, अपनी चीज़ें ऑन टाइम करनी है। लेसन लर्नड, सबसे पहली बात कि डोंट ट्रस्ट पीपल। जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं उन पे तो बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करो। इन मेडिकल कॉलेज जहाँ ये रहते हैं वहाँ बिल्कुल भी कोई किसी का सगा नहीं हो सकता है, तो अपनी बातें बहुत ही सोच समझ कर शेयर करनी होती है लोगों से, एंड लोगों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है, एंड तुम हर किसी को अपनी हर बात नहीं बता सकते हो। एंड लास्टली आई हैव लर्न दैट जितना मांगोगे उतना तुम्हें मिलेगा। अगर तुमने सोच रखा है कि तुमको सिर्फ पास होना है तो तुम उतना ही पास होगे, उतने ही मार्क्स तुम्हारे आएंगे कि तुम पास हो जाओगे। अगर तुमने सोच रखा है कि यू वांट टू गेट इनटू टॉप 20 देन यू विल वर्क हार्डर फॉर दैट एंड यू विल बी इन टॉप 20। और ओनली व्हाट यू हैव टू डू इज़ आस्क, मांगो यूनिवर्स से कि मेरे को इतना चाहिए, वो तुम्हें पक्का देगा, काम भी तुमसे करवाएगा, बस तुम काम करना, आलस मत करना। तो दीज वर द थिंग्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी इंडिपेंडेंट। तुम कॉलेज में हो या होम में हो, कहीं पर भी हो, जस्ट बी इंडिपेंडेंट। किसी भी चीज़ के लिए, इवन फॉर द ग्लास ऑफ वाटर, किसी पर भी बिल्कुल भी डिपेंडेंट मत रहो। एंड डोंट मेक अदर डिपेंड ऑन यू ऑल्सो। तुम किसी को अपाहिज बना दोगे तो ये चीज़ें मत करो। एंड एक्सप्लोर सो मैनी न्यू थिंग्स। MBBS में बहुत सारा पढ़ना होता है, बट इतना भी नहीं कि तुम खुद को एकदम एग्जॉस्ट फील कर लो और सर्वाइव ही ना कर पाओ। इसी फर्स्ट ईयर लाइक बहुत सारी न्यू चीज़ें हुई हैं। लाइक हम कैंप पे गए थे, फेस्ट हुआ था, हमने वो एक्सपीरियंस किया। हमारे यहाँ जितने भी प्रोग्राम्स होते थे, हमेशा मतलब बीइंग द घर का छोटू बच्चा हमें भेज दिया जाता था, तो हम हर जगह जाते थे। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बस एक चीज़ में सिमट के मत रह जाना। And the mistakes I made in my first year MBBS also, like I never expressed my feelings. तुम जो फील करते हो वो तुम एक्सप्रेस करो when you get that time to express yourself. तुम अगर नहीं खुद को बोलोगे तो लोग तुम्हें नहीं समझ पाएंगे। ये चीज़ मैंने सीख ली है और मैंने ये गलती करी है कि जहाँ था कि हाँ मुझे मतलब बोलना चाहिए मेरे खुद के लिए, मैंने वहाँ नहीं बोला। फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ कि मुझे वो चीज़ें बुरी लग रही हैं या फिर मुझे ये चीज़ें हर्ट कर रही हैं, तो मैंने ये मिस्टेक करी है, तो यू डोंट डू दैट। एंड दूसरी चीज़, आसानी से लोगों को माफ़ कर देना। माफ़ कर दो, आगे बढ़ जाओ, पर तुम अपनी बात को बता के आगे बढ़ो कि तुम्हें क्या बुरा लगा था। दिस वॉज ऑल अबाउट what I have faced, what I have experienced in my first year MBBS. and अगर आपको लगता है कि you can relate, you can have good thing from this video, then definitely have it, otherwise skip it. तो ओके बाय। ये वीडियो मेरे को बहुत लॉन्ग टाइम से बनानी थी, बट आई वॉज नॉट एबल टू मेक जस्ट बिकॉज ऑफ माई आलसपन, एंड टुडे आई एम मेकिंग इट। फाइनली आई एम मेकिंग इट बिकॉज इट वॉज मेंट टू बी कि हाँ मैं इसको बनाऊँगी, एंड सी द डे हैज़ केम। यू मस्ट नॉट रिग्रेट अबाउट द थिंग्स यू आर डूइंग। तो यहाँ पर हो तो फ्रेंड और अपनी पढ़ाई को बहुत ध्यान से मैनेज करके रखो, क्योंकि बैलेंस इज़ द की। सांस आनी चाहिए, सांस नहीं आएगी तो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, तो सर्वाइव कैसे करेंगे। द प्रेशर टू परफॉर्म वेल एंड द फेयर ऑफ बीइंग फेल हर्ट करता है, तो उसके लिए पढ़ना शुरू कर दो। रोज़ पढ़ो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। हैड गुड कनेक्शन विद योर सीनियर्स इन योर कॉलेज, और but maybe you will have a good connection with your friend who is in another college, or from another college seniors you must be having access. So please contact them, just ask them that how to do, what to do, and you are not able to do this, then how you are going to do. मतलब हर चीज़ उनसे पूछ लो, जस्ट मतलब निचोड़ लो खुद को। Go to someone and just express your feelings. This is the way you can heal yourself when you are so much low, you are so much doubting yourself that will you be able to make it or not. To all my fellow medical friends, you have got this, so be proud of what you are doing right now. So thank you so much for watching, and if you found this helpful, means relatable, then please let me know in the comment box. Like, share and subscribe if you are here till now. So okay, bye.